السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو ہے وہ جین پیاجے کے ریلیٹڈ کوئی 50 سے 60 کویسچن جو ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں تاکہ جو ہے وہ جین پیاجے کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے اور پریکٹس بھی آ جائے. تو امید ہے کہ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کا جین پیاجے کا سوال جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوگا جہاں بھی آئے گا. تو پہلا سوال ہے چلڈرن ایکٹیولی کنسٹرکٹ دیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا ورڈ. دیکھیں جو کنسٹرکشن آف نالج کی بات کرتے ہیں نا کہ بچہ اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کرتا ہے ایکسپیرینس کے ذریعے ایج کے ساتھ، تو یہ والا جین پیاجے بات کرتا ہے، یہ پیاجے ہوگا. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹ آف نالج کی بات ہو تو جین پیاجے کی طرف آ جانا ہے. سیکنڈ، اکارڈنگ ٹو پیاجے کاگنیٹو تھیوری آف لرننگ دا پروسیس بائی وچ دا کاگنیٹو اسٹرکچر از ماڈیفائڈ. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ماڈیفائی، جب ہمارا جو کاگنیٹو فنکشن ہے نا، جو میں سوچ رہا ہوں پہلے، اس سوچ کو تبدیل کرنا، یعنی اپنی پرانی سوچ کو نئی سوچ میں بدلنا، اس کو ماڈیفائی کرنا، پرانے ٹپیکل تھاٹس کو چینج کرنا، تو یہ اکموڈیشن ہوتا ہے. اور اگر وہی پرانے تھاٹ ہی رکھنا، اس کے اندر کچھ نیا اضافہ کر لینا، تو وہ ازمیلیشن ہوتا ہے، یہ اکموڈیشن ہوگا. اسی طرح تھرڈ کویسچن ہے جی، سیتا ہیز لرن ٹو ایٹ رائس اینڈ ڈیل ود ہر ہینڈ. سیتا جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے کہ رائس اور دال کھا رہی ہے، دال کھا رہی ہے اپنے ہاتھوں سے، اور جب وہ اس کو دال اور چاول دیے جاتے ہیں تو شی مکس رائس اینڈ دال اینڈ اسٹارٹ، وہ ان کو دونوں کو مکس کرتے ہیں اور پھر کھانا شروع کر دیتی ہیں. اب یہ دال اور چاول کا مکس کر کے کھانا، یہ اسکیما کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ ازمیلیشن ہے. میں پہلے بتاتا ہوں. دیکھیں ازمیلیشن اکموڈیشن، بیسیکلی ازمیلیشن اور اکموڈیشن جو ہے نا یہ انگلش کے ورڈ ہیں، اور ازمیلیشن کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. اب یہاں پہ دیکھیں دال، پتہ ہے یہ دال ہے کھانے والی، یہ چاول ہے کھانے والے، اب ان کو ملا کے کھا لیا اس نے، اور پرانے اسکیما ہی ہے نا، سمجھ لے دال اور چاول ٹھیک ہے کھانے والی چیزیں، اور اب اس کو ملا لیا. تو یہ کوئی نئی ایسی نئی چیز ایجاد نہیں ہوئی، کوئی نیا طریقہ ہے، کسی چیز کو پرانی چیز کو چھوڑا نہیں ہے اس نے کہ پرانی کو چھوڑ کے کوئی نئی چیز لے کے آئے. تو یہ ازمیلیشن کے اندر یہ چیز آ جائے گی. فورتھ ہے فٹنگ نیو انفارمیشن انٹو ایگزسٹنگ اسکیما. وہی کہ کوئی نیا نالج اپنے ایگزسٹنگ جو پہلے اسکیما ہے، جو پہلے میری تھاٹ سوچ ہے، اس کے اندر کوئی نئے نالج کا اضافہ کرنا، اسے ازمیلیشن بولتے ہیں. اکارڈنگ ٹو پیاجے تھیوری وچ ون آؤٹ آف دا فالوئنگ ول ناٹ انفلوئنس ونز کاگنیٹو ڈیولپمنٹ. کون سی چیز کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کو انفلوئنس نہیں کرتی؟ یہاں چار چیزیں ہیں، میں اینڈ سے شروع کرتا ہوں. ایکٹیویٹی، پیاجے کہتا ہے کہ بچہ اپنا نالج خود کنسٹرکٹ کرتا ہے ایکٹیویٹی کر کے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تھرڈ دیکھیں میچوریشن. میچوریشن کہتے ہیں کہ جو بندہ ایج کے ساتھ اس کے اندر سمجھداری میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی فہم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، تو یہ جین پیاجے ہی یہ بات کرتا ہے کہ ایج کے اکارڈنگ جو انسان کی میچورٹی ایج کے ساتھ آتی ہے. سیکنڈ ہے سوشل ایکسپیرینس. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جین پیاجے نے تو سوشل ایکسپیرینس، سوشل جو ہے نا اس کو تو اگنور کیا، یہ تو بات کرتے ہیں ویگوٹس کی، بالکل غلط بات ہے. جین پیاجے ان کو اہمیت کم دیتا ہے، اگنور نہیں کرتا، کم اہمیت دیتا ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ بچہ جو نالج ہے اپنا نالج کنسٹرکٹ کرتا ہے، وہ سوشل ایکسپیرینس بھی کرتا ہے، ان کو یہ نگلیکٹ نہیں کرتا، بس اہمیت کم دیتا ہے. لینگویج کو اگنور کرتا ہے. یہ یہاں پہ لینگویج آنسر ٹھیک ہوگا. وہ کہتا ہے لینگویج کو کم اہمیت دیتا ہے، پہلے مائنڈ آتا ہے پھر لینگویج آتی ہے، جبکہ یہ ویگوٹس کی جو ہے نا وہ قدر لینگویج کو زیادہ سپورٹ کرتا ہے. سکس ہے which one of the following statement best summarize the relationship between development and learning as proposed by Piaget. کہ ڈیولپمنٹ اور لرننگ جو ہے نا یہ پیاجے کے مطابق کیسے؟ دیکھیں ایک تو بات یاد رکھیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا، ایک بچہ ڈیولپ ہوگا، ڈیولپمنٹ بڑے ہونا، اس کی عمر میں بڑھنا، اس کی فراست کے اندر اضافہ ہونا، جیسے بچہ ڈیولپ ہوگا اس کی لرننگ بھی بڑھے گی. اب یہ ڈیولپمنٹ اور لرننگ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں جی، ڈیولپمنٹ از انڈیپینڈنٹ آف لرننگ. بالکل غلط بات ہے. اکیلی ڈیولپمنٹ ہوگی اور لرننگ نہیں ہوگی، یا لرننگ ہو جائے گی اور ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی؟ نہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. سیکنڈ ہے ڈیولپمنٹ پروسیس لیگز بیہائنڈ دا لرننگ پروسیس. کہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ پیچھے ہے، لرننگ پہلے ہے. ڈیولپمنٹ پروسیس لیگز بیہائنڈ دا لرننگ پروسیس. کہ لرننگ پروسیس سے جو ہے نا وہ یہ بات بھی کوئی نہیں ہے کہ جو ڈیولپمنٹ پیچھے رہ جاتی ہے اور لرننگ آگے چلی جاتی ہے. تو بھائی ڈیولپمنٹ ہوگی تو لرننگ ہوگی نا. تھرڈ ہے ڈیولپمنٹ از سینونیمس ود، بھائی ایک ہی چیز ہے تو غلط بات ہے، جنرل ہے کہ ڈیولپمنٹ از کیا تو سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ اور لرننگ ڈیولپ ہوا تو لرننگ بھی ہوگی. لرننگ پروسیس لیگز بیہائنڈ دا ڈیولپمنٹ پروسیس.
जीन पियाजे कहता है ना कि पहले स्टेजेस बताता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी लर्निंग भी पीछे बढ़ती जाएगी। थर्ड में जाएगा कंक्रीट आ जाएगी, फोर्थ स्टेज में जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल आ जाएंगे। तो जो डेवलपमेंट आगे होगी और लर्निंग पीछे होगी, ठीक है, डेवलपमेंट आगे होगी, लर्निंग पीछे होगी, यानी डेवलपमेंट जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे लर्निंग होगी। ये जीन पियाजे कहता है सेकंड, थर्ड, सिक्स, फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। सेवंथ, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय, बच्चे किस तरह याद करते हैं? मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन, कि बच्चे रट्टा लगाते हैं, मेमोराइज करते हैं, वो बात तो नहीं करते, ना कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, तो रट्टे की बात नहीं करते। स्कफ फोल्डिंग तो पियाजे वो करता है, विगोट्स्की करता है, वो तो नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, ये कि हमने वो बात की थी, अजमिलेशन अकोमोडेशन, ये अजमिलेशन अकोमोडेशन इज सम अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के पार्ट है, अडेप्टेशन के अंदर अजमिलेशन अकोमोडेशन आता है। तो प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन की बात करता है कि बच्चा अडेप्टेशन के वजह लर्न करता है, ये ठीक आंसर है। बिहेवियर की बात तो वो कंडीशन वाले बिहेवियरिस्ट करते हैं। 8 है, विच टर्म फ्रेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंकिंग, ये मेंटल स्ट्रक्चर की बात स्कीमा कहते हैं, यानी मेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, यानी कोई चीज़ हमारे दिमाग के अंदर हमने सोच रखी है, हमने अपने दिमाग के अंदर सोचा इसका ये हल है, तो ये स्कीमा जो है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग है, स्कीमा इसको बोलते हैं। 9th है, डैश व्यूज चिल्ड्रन आर एज एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज, के बच्चे जो हैं वो नॉलेज के एक्टिव बिल्डर, नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट करना, बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्ट की बात करना, ये पियाजे ही करता है, ये आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। 10th है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर्स इन, वो कहता है कि बच्चा जो है ना, ये और जो बड़ा है, जिन पियाजे कहता है छोटे बच्चे और बड़े बंदे, इनकी सोचने की क्वांटिटी सेम होती है, यानी अगर 100 थॉट बच्चे के ज़हन में आ रहा है तो 100 ही बड़े की ज़हन में आता है, लेकिन इनकी क्वालिटी मुख्तलिफ होती है। बच्चा कुछ और सोच रहा होता है, मर्द बड़ा कुछ और सोच रहा होता है, तो काइंड सेम है लेकिन अमाउंट जो है वो क्या होगी, काइंड मुख्तलिफ है, ठीक है, काइंड मुख्तलिफ, उनके सोचने की अकसाम मुख्तलिफ हैं, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, लेकिन उनका जो है ना अमाउंट जो है, कितने थॉट वो सेम ही होंगे। 11th है, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, कौन सा जो फैक्टर है वो डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है? तो रीइंफोर्समेंट बिहेवियरिज्म वाले बात करते हैं, ये इसके अंदर जीन पियाजे नहीं बात करता। लैंग्वेज जीन पियाजे इग्नोर करता है। एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, तो वो कहता है बिल्कुल इसको कि जो बच्चा जब दूसरी दुनिया के साथ फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस करता है तो अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, तो ये वाला इसको अहमियत देता है ये, ठीक है। इमिटेशन ऑफ बंडोरा बात करता है। 12 द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग डिलीटिंग स्कीमा एंड फॉर्मिंग न्यू स्कीमा टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, तो पुराने स्कीमा को डिलीट करना और कुछ नई चीज़ लेके आना, तो ये अडेप्टेशन है। मैंने कहा ना अडेप्टेशन अक्समिलेशन और अकोमोडेशन का सम है, पार्ट है, तो अडेप्टेशन होगा। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ये तो विगोट्स्की कहता है, स्कैफोल्डिंग विगोट्स्की कहता है। स्कीमा तो एक बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है, स्ट्रक्चर है, वो बात तो यहाँ नहीं की हुई, यहाँ तक बात की हुई है। डिलीटिंग स्कीमा, पुराने स्कीमा को डिलीट करके नया बनाना, तो ये अडेप्टेशन के अंदर आता है। 13 अकॉर्डिंग टू पियाजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल जरूरी है? वो देखिए जीन पियाजे की बात हो रही है, तो ZPD अज़मिलेशन, ये तो ZPD तो विगोट्स्की में आ जाता है, स्कैफोल्डिंग विगोट्स्की में आ जाता है। IQ क्रिएटिविटी को कम अहमियत देता है, अज़मिलेशन अकोमोडेशन ही होगा। 14 है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर लर्निंग के लिए क्या चीज़ जरूरी है? बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस, ये बिलीव इन इमिनेंट जस्टिस मुराद होता है कि फौरी इंसाफ होना, ये बात तो करता है जीन पियाजे ही करता है, लेकिन ये अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में करता है, इधर नहीं करता भाई फॉर नेसेसरी फॉर लर्निंग के लिए नहीं करता कि लर्निंग के लिए क्या चीज़ जरूरी है। रीइंफोर्समेंट वो तो बात करते हैं बिहेवियरिज्म वाले, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलो, वो करते हैं। और रीइंफोर्समेंट के बाद स्किनर करता है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, वही बात जो मैंने पहले की थी, एक्टिव लर्नर जी पियाजे क्या कहता है कि ये एक्टिव लर्नर कहता है बच्चे को, तो एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर होगा इसका करेक्ट आंसर। 4th ऑब्जर्विंग वाली बात जो है वो बंडोरा करता है। 15 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्कीमा बिल्डिंग अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग, वही बात अब देखिए नई बात है, कहता है कि अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई किया, उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन डाली, पुरानी को तब्दील किया, इसे अकोमोडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे चूंकि
यहाँ स्कीमा बाई मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमा एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन दिस टू प्रोसेस, दो की बात की है तो अज़म्युलेशन अकोमोडेशन दोनों आ जाएगा कि यानी उनके अंदर कभी हम नई इन्फॉर्मेशन डाल के उसी के साथ चल रहे होते हैं, कभी नई डाल के उसको चेंज कर रहे होते हैं, तो ये दोनों आएगा क्योंकि यहाँ पे सेपरेट नहीं लिखा हुआ। 16 द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज डैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज सुपीरियर, नहीं भाई बच्चे की थिंकिंग सुपीरियर है, चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटी डिफरेंट, नहीं बल्कि मैं कहा था क्वांटिटेटिवली सेम है, चिल्ड्रन थिंकिंग क्वांटिटी इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम अदर एडल्ट, बिल्कुल ठीक है, यानी उनकी क्वांटिटी सेम होती है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होती है, बच्चा कुछ सोचता है बड़ा कुछ सोचता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, बंडोरा करता है, कंडीशन ये स्किनर पावलो थर्ड आई करते हैं, कैन बी टाट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल, रिवार्ड एंड पनिशमेंट के बाद भी स्किनर करते हैं। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की बात आ गई है तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने की बात पियाजे करता है, ठीक है। अब कुछ स्टेजेस की बात कर लेते हैं। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज कॉल्ड, जब बच्चा लॉजिकली सोचता है ना, वो कंक्रीट स्टेज के अंदर है, कंक्रीट के अंदर बच्चा लॉजिकली कंक्रीट चीज़ों को फिजिकल चीज़ों को सोचना शुरू करता है, तो ये कंक्रीट अपने स्टेज होगी। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू अबाउट 2 से लेके जो है वो 0 से 2 साल तक जो होता है इसे सेंसरी स्टेज कहते हैं। इसके अंदर जो बच्चा लर्न करता है ना वो सेंसेस के लर्न करता है, अपने जो बच्चे को आप रोकते रहे ना वो बात का असर नहीं लेगा, बल्कि वो चीज़ों को खुद छू के खुद उसको तजर्बा करके जो है लर्न करता है बाय यूजिंग द सेंसेस। थर्ड है द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस के मुराद ये होता है कि बच्चा एक चीज़ के साथ खेल रहा है ना, आप उससे वापस ले रहे तो फिर बच्चा वो चीज़ तलाश करेगा, ढूंढेगा, मांगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस ये सेंसिटिव स्टेज के अंदर ही होता है। यानी बच्चा 8 महीने से पहले उसके सामने से आप कोई चीज़ साइड पे करेंगे भूल जाएगा, 8 से 11 महीने के दौरान बच्चे को अब समझ आ जाती है कि जिसके साथ मैं खेल रहा था ना वो कहीं उधर है, मैं उसके साथ खेलूँ, वो उसको तलाश करता है। फोर्थ है एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, ये फॉर्मल स्टेज होती है ना इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, ठीक है, इमेजिनेटिव हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक्सेप्ट, ये सारी बातें उसकी रिवर्सिबिलिटी, देखिए रिवर्सिबिलिटी जीन पियाजे की थर्ड स्टेज के अंदर आ जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग बच्चे के शुरू से होती है और थर्ड के अंदर तो पहली तीनों स्टेजेस इंडक्टिव होती हैं। स्पेटल थिंकिंग के उनकी चीज़ों ऊपर वाली चीज़ों के बारे में। लैक ऑफ कंजर्वेशन तो थर्ड के अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं होती, ये तो सेकंड के अंदर कंजर्वेशन होती है। थर्ड के अंदर बच्चा जान गया होता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, कहाँ पानी ज़्यादा आता है कहाँ थोड़ा आता है, बच्चा जान गया होता है, तो फोर्थ जो है वो एक्सेप्ट होगा। 6 है बच्चा द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी, देखें जो डेवलपमेंट है ना वो स्टेजेस की सूरत में है, पहले 1 2 3, तो यहाँ पे भी ये जो कंक्रीट बना हुआ है 1 ऑप्शन जो पहला है उसके अंदर देखें ना जरा कि उसने वो कंक्रीट बनाया हुआ यानी स्टेजेस बनाई हुई है, तो इस तरह डिस्क्रीट किस्म की स्टेजेस जो है वो डेवलपमेंट की जीन पियाजे की हैं, तो ये 1 होगा। 7th है अ टीचर शोज टू आइडेंटिकल, टीचर जो है ना मैं इसको वैसे समझा देता हूँ, एक बच्चा है उसको जो है ना 2 गिलास उसके सामने पड़े हैं, एक की हाइट ज़्यादा है और एक की जो है ना वो विड्थ ज़्यादा है, टीचर जो है ना वो हाइट वाले गिलास से निकाल के जो है ना वो दूसरे गिलास में डाल देता है, ठीक है, तो मतलब उसके अंदर जो शी आस्क्ड हर क्लास टू आइडेंटिफाई व्हिच ग्लास वुड हैव मोर जस्ट जूस इन, बेसिकली जूस तो सेम है, स्टूडेंट रिप्लाइड दैट द टॉलर ग्लास हैज मोर, जो बच्चे कहते हैं जो बड़ा गिलास है उसमें ज़्यादा जूस है। हर स्टूडेंट हैड डिफिकल्टी, अभी तक उनके बच्चों के अंदर ना यानी कंजर्वेशन नहीं आई, तो कंजर्वेशन डिसेंट्रेशन बोलते हैं, डिसेंट्रेशन डिसेंटिंग होगा, यानी देखिए रिवर्सिबिलिटी तो आ जाती है, पता चल जाता है, एकोमोडेशन एगोसेंट्रिक, डिसेंट्रेशन ये होता है कि आप चीज़ का एक पहलू देख रहे हैं, सेंट्रेशन किसी एक चीज़ का देख रहे हैं, आप लंबाई को तो देख रहे हैं चौड़ाई को नहीं देख रहे, तो बच्चा जो है ना वो अभी तक उनको डिसेंट्रेशन यानी वो चौड़ाई को नहीं देखने, जिसकी वजह से उनके जो है ना वो बातें गलत हो रही हैं। 8th है which of the following stage are involved with infant think with their eyes, ears and hand, ये सेंसिटिव स्टेज के अंदर जो होता है ना बच्चा सेंसेस का यूज़ करके नॉलेज का यानी उसके अपनी जो सोचता है ना वो हाथों से सोचता है, आंखों से सोचता है, हाथ से सोचता है, दिमाग उसका इतना काम नहीं करता। रिट्रीविंग हिडन ऑब्जेक्ट कि एक वो चीज़ें जो छुपी हुई हैं उनको वापस हासिल करने की कोशिश करना, इज एविडेंस दैट इन्फेंट हैव बिगन, तो ये वो एविडेंस है कि बच्चे को जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का पता चल गया, नहीं बच्चा जो शख्स के साथ खेल रहा है वो एकदम से गुम होती है, कोई छीनता है तो बच्चा उसकी तरफ देखता है और उस चीज़ को दोबारा चाहता है, तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, ठीक है।
प्याजे proposes that pre-operational children are unable to conserve, कि जो बच्चे प्री ऑपरेशन में unable to conserve हैं, क्योंकि कंक्रीट में कंजर्वेशन आती है ना. His attribute this inability to which one of the following factor, यही कि उसके अंदर irreversibility of thought नहीं है. irreversibility of thought जो आता है ना वो थर्ड स्टेज के अंदर आता है, तो यहाँ irreversibility of thought नहीं होगा. 11th, development of the capacity for abstract scientific thinking is the characteristics of, तो scientific thinking, abstract thinking की बात जो होती है वो फॉर्मल स्टेज के अंदर होती है, ये आपको पता ही होंगे ये वाली चीज़ें. अच्छा जी, 12th है, which one of the following is a correctly matched pair. मैच पेयर देखते हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे क्लासिक CCS क्लासीफाई करना, कंजर्वे करना और सेरिएशन करना ये बच्चा सीख चुका होता है, तो ये पहली स्टेज बिल्कुल करेक्ट है. दूसरी देखो, इमिटेशन बिगिन इमेजिनरी प्ले, इमिटेशन बच्चा कॉपी करना तो पहले सेंस स्टेज से शुरू कर देता है, ये वाला नहीं होगा. इन्फेंसी अप्लाई लॉजिक, लॉजिक तो कंक्रीट में करता है, इन्फेंसी में तो नहीं होगा. प्री ऑपरेशनल डिडक्टिव, डिडक्टिव तो एब्स्ट्रैक्ट में होता है, यहाँ पे नहीं होता, तो पहला ऑप्शन ही ठीक है. 13 है, अ चाइल्ड से क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, बच्चा कहता है कि जो कपड़े हैं धूप में ज़्यादा जल्दी सूखते हैं. शी इज शोविंग एन, वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कार्बन इफेक्ट है ना, कि उसने देखा कि धूप लगेगी ज़्यादा तो उसके पानी ज़्यादा निकलेगा, ये कार्बन इफेक्ट के अंदर आ जाता है. द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को जो है वो देख रहा होता है कि जैसे वो करता है वैसे मैं करूं, ठीक है, कॉपी करना, जैसे वो करता है उस तरह करना, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को देखना, ठीक है. इस तरह हाइपोथेटिकल तो आता है, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल ये चीज़ आती है फोर्थ के फार्मल के अंदर. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दूसरा वाला भी फार्मल हो गया. एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड, ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं है, ये दूसरी है सेंसिटिव स्टेज, कि बच्चा जो है ना वो क्रॉलिंग करता है तो जो चीज़ उसे पसंद होती है उसके पीछे तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है उसके अंदर. 15 है, a 5-year-old child failed to reason that when water is transferred from a tall and narrow glass to a wide container of the quantity of water remain the same. This is because, बच्चा जो है ना वो क्यों नहीं समझ पा रहा, बिकॉज वो रिवर्स नहीं कर रहा अपनी थिंकिंग को, उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आई, वो अभी तक कंजर्वेशन उसके अंदर नहीं आई, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहा. थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा. While riding a bicycle, a boy prompts his sister, बाइसाइकिल चलाते हुए एक जो लड़का है वो अपनी बहन से कहता है ड्राइव फास्ट, के तेज चलाओ, वी विल रीच देयर अर्लियर, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना है. ही इज शोविंग एन अंडरस्टैंडिंग, वो क्या बता रहे हो, कार्बन इफेक्ट, कि अगर हमें जल्दी पहुँचना है तो हमें जल्दी बाइक चलानी पड़ेगी, ये बदल ये पता नहीं कहाँ से शामिल कर देता है. 17 अ चाइल्ड फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, एक चीज़ वो कंसंट्रेशन होता है, यानी जब बच्चा किसी एक पहलू के ऊपर गौर करता है ना, बाकी चीज़ों को इग्नोर करता है, तो इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं. 18 है, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स डैट, ये कंजर्वेशन जो है ना वो मतलब ये होता है ना कि बच्चा पता चल गया होता है कि ये कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी छोटी बड़ी, इस तरह से पता चल गया होता है. तो यहाँ पे क्या देखता है इसको, कौन सा सवाल है ये 18वां सवाल है, ठीक है. अच्छा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, ये कौन सी बात आ गई, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ताल्लुक कहाँ से आ गया. सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, तो बच्चा यानी समझ गया होता है, देखो वही बात है ना, कंजर्वेशन के अंदर बच्चा समझ जाता है कि अगर वो कुछ एक लंबी टॉलर फ्लास्क में है, एक कुछ पानी जो है ना वो वाइडर फ्लास्क के अंदर है, तो दोनों के अंदर जो पानी सेम है, क्वांटिटी सेम है, प्रॉपर्टी सेम है, बस थोड़ा सा उसकी शक्ल बदली है, अपीयरेंस जो बदली है, बच्चा समझ जाता है. सेकंड ठीक होगा. 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट. लिमिटेशन क्या होती है, प्री ऑपरेशन के अंदर बच्चा क्या करता है, सिंबॉलिक थॉट बिल्कुल सीख चुका होता है. इगोसेंट्रिसिज्म, ये भी बच्चा उसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर होता है. इरिवर्सिबिलिटी, ये भी उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती, इन चीज़ों को एक चीज़ की तरफ देख रहा होता है, दूसरा पहले नहीं देखता. टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, कंस्ट्रेंट तो बच्चा का ही लेगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशन के अंदर बच्चा क्या करता है कि क्या कौन सी उसके अंदर गोल डायरेक्टेड, वो तो प्री ऑपरेशन में होता है, वो सेंसरी में होता है. डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड इमिटेशन जैसे बच्चा चीज़ों को कॉपी करता है और उसको बाद में करता है, यानी पुरानी चीज़ों को कॉपी करके जो है ना वो शो करता है. तो डेफर्ड इमिटेशन. इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये कंजर्वेशन की वो कंक्रीट में आती है. सर्कुलर रिएक्शन पता नहीं क्या है. डेफर्ड इमिटेशन करेक्ट आंसर होगा कि देखिए बच्चा जो है ना वो जिसने सेंसरी स्टेज के अंदर कुछ सीखा, वो बाद में कुछ देर के बाद उस चीज को कर रहा होता है, वो प्री ऑपरेशन में जाके, तो डेफर्ड इमिटेशन बच्चा कॉपी करता है और उसको कहीं ना कहीं जो है ना बाद में कभी शो कर देता है. वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन स्टेजेस, मेजर जो अकम्पलिशमेंट कंक्रीट के अंदर
हाइपोथेटिक डिडक्टिव पहले वाला ये तो आ गया फॉर्मल में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये पता नहीं क्या रिएक्शन के बाद एनी मिस्टेक थिंकिंग, ये पेशेंट के अंदर होती है। और हम चूंकि बाद एबिलिटी टू कंजर्व, CCS कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सेरिएशन, ये तीनों चीजें जो बच्चा सीखता है ना वो थर्ड स्टेज के अंदर कंक्रीट के अंदर सीखता है। 4 ठीक होगा। 22 क्वेश्चन है बच्चा द फॉलोइंग बिहेवियर करेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज एज प्रपोज्ड। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जो है वो उसके अंदर बच्चा क्या कंजर्वेशन कर लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, तो ये वाली जो है ना वो इसका 4th ऑप्शन ठीक होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट नहीं अभी बल्कि हमने और करने हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल, वही फॉर्मल स्टेज के अंदर आता है, पहले बात कर चुके हैं। अब कुछ इसके ऊपर क्रिटिसिज्म के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर टू, आप में से अब कुछ लोग रेडीनेस फॉर लर्निंग पढ़ेंगे तो फौरी तौर पे आ जाएंगे जी कि ये अब उसने बात की थी, थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर की थी। जरा गौर से पढ़ें। प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन द लर्निंग कंटिन्यूम, कि रेडीनेस लर्निंग वो यही बात करता है कि एक बच्चा कुछ सीखने के लिए उसका कॉग्निटिव लेवल जो है वो सूटेबल है, वो तैयार है, तो इसको हम यही तो बात करते हैं रेडीनेस ऑफ लर्निंग। पियाजे के नजदीक रेडीनेस ऑफ लर्निंग होता है कि कोई एज के अकॉर्डिंग, अपनी स्टेजेस के अकॉर्डिंग भी उस चीज को लर्निंग के लिए तैयार है कि नहीं है। ये 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, अंधाधुंध वो लगा नहीं देना। सेकंड है which of the following implication can't be derived from Piaget theory of cognitive development, कौन सी चीज जो ना cognitive development के अंदर sensitivity to child, readiness to learn, ये तो ठीक है, readiness to learn की बात करता है, acceptance of individual differences वो भी बात करता है, discovery learning जब बच्चा खुद knowledge construct करता है तो discovery भी आती है, need of verbal teaching, verbal teaching की बात नहीं करता कि उस्ताद आए और क्लास के अंदर ऊंचा ऊंचा पढ़ाना शुरू कर दे, बस यही verbal teaching की बात जो है ना इसके हक में नहीं है। Fourth, according to the theory of cognitive development given by Piaget, the teacher has an insignificant role to play in classroom, insignificant role यानी no, देखें क्या टीचर्स का इनसिग्निफिकेंट रोल है क्लास के अंदर के, बच्चे कोई रोल नहीं है, बच्चे तो यहाँ यानी इनसिग्निफिकेंट रोल, तो यानी ये तो बात गलत है ना कि नो उनका रोल है, तो फिर पहला और चौथा तो गलत हो गया। तो बिकॉज टीचर सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द एक्टिव, टीचर तो फैसिलिटेट करता है बच्चे को एक्सप्लोर करने पे मानता है, उसका तो रोल है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ है बच्चा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निशन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Piaget argued that instead of progressing through stages, cognitive development is continuous। भाई वो तो कहता है डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस की बात तो ये नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया। Piaget has proposed 5 distinct stages, नहीं, बिल्कुल Piaget ने 4 स्टेजेस दी हैं। The stage are invariant which means that no stage can be skipped, वो कहता है ये लाजिम मलजूम है स्टेजेस, अगर हम चारों स्टेजेस में से कोई और स्टेज भी निकालेंगे तो ये ठीक बात नहीं होगी, तो ये लाजिम मलजूम है, किसी को स्किप नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन ठीक है। फिफ्थ है which one of the following statement can't be attributed to Piaget theory, कौन सी जो स्टेटमेंट है Piaget theory को, children construct and use knowledge about their world, बिल्कुल ठीक है, वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यूज करते हैं। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, कि लर्निंग जो है वो कांस्टेंट प्रैक्टिस की बात तो करता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज वाले, ये तो कांस्टेंट प्रैक्टिस की बात नहीं करते। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, अपने बच्चे अपने माहौल में एक्ट करते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन एक्ट इन क्वालिटेटिव स्टेज, ये भी ये जो ना सेकंड ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ड्राइंग इंप्लीकेशन फ्रॉम Piaget थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचर ऑफ ग्रेड 6-8 इन क्लासरूम शुड, ड्राइंग के टीचर को 6-8 में क्या करना चाहिए, रिले सोलली एज प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, कि जो सिलेबस बताया गया वही पढ़ा, ये तो कभी कहीं भी ठीक नहीं होना चाहिए कि वही सिलेबस पढ़ाया जाए। डिस्करेज कभी नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, कि बच्चे को ये रीजनिंग की बात करते हैं ना कि वो लॉजिक की बात भी करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल उस तरह की, तो ये कहते हैं प्रेजेंट प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट करो और उसके ऊपर जो ना वो रीजन दो, उसका सोल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और ये तकरीबन 50 सवाल हमने जीन पियाजे की थ्योरी में से किए हैं, इसके बाद वेगोट्सी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।